पहली बारी कौन कौन है? प्लीज गिव दिस पीपल अ बिग हैंड। बहुत सारी गल्लां हो गई, थोड़ियां जी मैं भी करनी चाहना, पर मैं दस दियो टाइम कितना होगा, मुझे पता ही नहीं लगता है ना। सो किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने इतनी गल की थी, वैसे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऑलमोस्ट वो गल की कि फेथ चाहिए, विश्वास नाल बिजनेस करो, विश्वास नाल प्रोडक्ट्स दिओ ते रिजल्ट्स आउंदे हैं। मैं उस गल मैनूं अच्छी लगी, मैं उस गल ते कुछ कहना चाहना तुहानूं सारिआं नूं। रियल इंस्टेंस शेयर करना तुहाडे नाल। यूएस दे विच एक रिसर्च हुई, एक्सपैरीमेंट होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਪੇਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੀਵੀਅਰ ਕਿ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਰਫਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਰਫਿਨ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ। ਤੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਵੰਡਤੇ, ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰਫਿਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਈਜ਼ੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਰਫਿਨ। ਮਾਰਫਿਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਵਧੀਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਜੈਕਟਿੰਗ ਮਾਰਫਿਨ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਜਨਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮੇਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ or something। ਗੈਸ ਵਾਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਫਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਫਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਾਰਫਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਪਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਫਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਫਿਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਚੱਲੀ। ऐसा क्यों होया? Why it happened? It happened because ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਫਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਓਪੀਓਇਡਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਓਪੀਓਇਡਸ ਆਰ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਰਸ। ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਓਪੀਓਇਡਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਚਲੀ। What I want to say is ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਡੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਾਰਫਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਫਿਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮਾਰਫਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਫਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਵਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਨ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਐਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਵੰਡ ਤੇ। ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟ-ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ।
परफेक्टली ओके। 10 साल बाद उन्हें केसेस को दोबारा स्टडी किया गया, जिन्हों की सर्जरी हुई सी उन्होंने 30% उत्ते जा चुके थे। 60% नूं दोबारा प्रॉब्लम होगी, किसी का स्टंट पै गया, किसी कुछ पै गया, किसी एंजियोप्लास्टी दोबारा करानी पई, ते 10% ठीक सीगे, वो भी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन ते रहणगे। ते जेड़ा दी सर्जरी नहीं सी हुई, 100% ऑफ द पेशेंट्स वर ऑलराइट। मैं ये कहना चाहूंगा, इवन बाईपास इज अ प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट मतलब माइंड कहता मैं ठीक हो गया तो बॉडी ठीक कर रही। इस तरह ही जो हीलिंग हैंड्स दे डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिन्होंने आप हीलर्स कहते हैं, व्हेन दे अप्रोच समवन एंड दे हैव अ कन्विक्शन कि भाई तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲਾਭ 100% ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਫੇਥ ਬਣਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, 99.9% ਨਹੀਂ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Whereas network marketing ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। We need to work on ourselves, ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਫੀਲਡਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੂਰ ਹੈ। 20-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੱਡੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਪ ਦੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਾਰਡਿਨਲ ਰੂਲਸ। 3 ਕਾਰਡਿਨਲ ਰੂਲਸ। ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ
एक कानून आ भी हेलमेट पाना है, स्कूटर जो चलाना, मोटरसाइकिल जो चलाना, हेलमेट पाना। लेकिन किन्ने लोग हेलमेट पाते हैं जिन्हें मोटरसाइकिल चला रहे है ना, वो हेलमेट इतने पाया होंगे। आम तौर पर मैं देखता इतने पाया होना, इतने होंगे पर इतने पाया। सो वी ब्रेक द लॉ। एक टेंडेंसी है बिकॉज असं आजादी पसंद बंदे हैं, पंजाबी सब तो वध आजादी पसंद है, रोक टोक नहीं चाहिए, मेरा नहीं जी करता हेलमेट पाने। हालांकि वो पता भी सारी सेफ्टी वास्ते, बट स्टिल पीपल ब्रेक द लॉ। अच्छा जो पुलिस वाला फड़ ले तो फटाफट चक के पा लेते हैं। मतलब 100 रुपया बचाने की फिक्र है, उन्हें फड़ लेना 100 रुपया का चलान होना या 500 रुपये का चलान होना, लेकिन अपना फिक्र नहीं। ये फिक्र नहीं इस नाल नहीं पाते कि कुछ साडी सेफ्टी हैगी है, बट वी ट्राई, वी आर लाइक दिस। मैं भी इतने करता था जब भी यंग सीगा, यंग तक खैर मैं नहीं है, पर जब मैं पहला ज्यादा छोटा होता तो ये आदत है। दूसरी गल रेड लाइट से रुकना चाहिए, पीली हल लंघ पीली हल, वो पीली रही हरी लाल होंगी नहीं। सो वी ब्रेक दैट ऑल्सो। अच्छा जो आप लॉ ब्रेक करते हैं, कर सकते हैं, कोई मतलब जरूरी नहीं कि 100% आप मनना ही है, लेकिन जो आप लॉ ब्रेक करते हैं तो बड़े जाने तो फिर सजा भी, वो फाइन भी हो सकता, वो एक्सीडेंट भी हो सकता, डिपेंड करता किदा का लॉ ब्रेक किया गया है ना। हम आप रेड लाइट जंप की है, जो ट्रक आ रहा हो कुछ हो सकता ना, नुकसान हो सकता, किस भी चल गई उन्होंने भी कुछ हो सकता, सानू भी कुछ हो सकता। सो कोशिश करनी चाहिए कि लॉ ना ब्रेक किया जाए। इधे नैटवर्क मार्केटिंग के कुछ कानून ने जेडे तोड़ने नहीं, जिदा जिदा वो कानून टुटणगे उदा उदा सजा मिलूगी। सजा कुदरत नहीं दे रही है, सजा देने वास्ते इतने कोई जज नहीं बैठा होया, ना इतनी कोई पुलिस है, ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन सजा सिस्टम इदा ना कि सजा अपने आप मिलना है। पहला कानून जो है उसके बारे में तो दसदा, लेकिन उस तो पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहना। जब कहते कहानियां घट सुनाई है, इस बार एक कहानी सुना स्टोरी ये है। उस तो बाद एक सवाल भी आऊगा थोड़े वास्ते, जो पहली बारी सुन रहे हैं, जिन्होंने सुनिया भी वो जवाब ना देना। स्टोरी ये एक राजा सीगा, उन्होंने हवन यज्ञ करने का बहुत शौक सी, वो आस्था सी इस गल ते हवन यज्ञ करता होंदा सी। एक बार उन्हें यज्ञ रखाया, पंडितां नूं बुलाया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना प्रीति भोज एक दिंदे हुंदे, ब्राह्मणां नूं भोज कराया जांदा हवन दे विच, ते ਉਹ प्रीति भोज भी रखाया गया। बहुत सारे ब्राह्मणां नूं बुलाया गया भोज वास्ते, ते रसोईया ते होर बाकी खानसामा वगैरह खाना बना रहे सी, खीर बना रहे सी, होर चीज़ां बना रहे सी। ते रसोईया खीर बना रहा सीगा, ते खीर का हम जो खीर बना रहे सी, खीर का ढक्कन कुदरती खुला सीगा, जो उन्होंने वो चलाना वो की चलाते नाम नहीं लगता, हलवाई को पता होगा, तो है चला रहा सीगा। ते कुदरती बाई चांस उपरों ना एक इल उड्डी जा रही सी, ते उहदे पंजियां च ना एक सप सीगा, ते सप चक के लियाई होनी है, उड्डी जा रही सी। तो हुण सप ने अपने डिफेंस वास्ते बचन वास्ते इल दे पंजियां च वो डंग मारी जा रहा सीगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁੜਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਖੀਰ ਹੁਣ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਖੀਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, और डिबेट नहीं है, बट वो पहुंच गए। चलो स्वर्गवासी या नरकवासी हो गए। हुण तुहाडे वास्ते एक सवाल है, एक कर्म होया ना, किते कोई काम होया है ना, किसी ने किसी दे खाते च तां पैना ना। हुण ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਵੀ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਮ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
या ये सप के खाते च जाना चाहिए या राजे के खाते च जाना चाहिए जिन्हें कराया। हुण मेरा तो सवाल है सारे भी कर्म तो किसी ने किया ना कि खाते च पाइए? ब्राह्मण मर गए बेचारे, कि खाते च पाना चाहिए? अपनी अपनी राय तुम दे सकते हो प्लीज। जेडे राजे वाले ने हाथ खड़े करो, ये राजे वाले नहीं सारे जी, नोट कर लो, हाथ खड़े रखने, ये राजे वाले हैं। अच्छा, होर किसी की कोई सलाह? ब्राह्मण वाले हैं? ब्राह्मण तो मर गए, वो तो मर गए। 3-4 ऑप्शन है, राजा है, सांप है, चील है और रसोईया 4 है। तो राजा वाले तो बोल दिए, और बताओ रसोईये का कसूर है ना, वो बना रहा सीगा। रसोईये वाले कितने भाई? 2 4 ही है रसोईये। अच्छा, कोई सप नूं भी दोषी दिंदा? कोई सप का जहर सीगा? एनीबॉडी? कोई सप वाला हैगा? अच्छा चलो, इल चक के लेके जा रही थी, ओदा भी कोई कसूर हो सकता है? चील का ज्यादा कसूर था? चील वाला भी है? हाँ, वो ना लेके जाती तो कुछ ना होता है ना। सप डंगना मारता तो कुछ ना होता, रसोईया खाना ना बनाता तो कुछ ना होता, जे भोज ही ना दिंदा राजा तो कुछ भी नहीं होता। सो सारे के अपने अपने एक विचार है। लेकिन मैं स्टोरी तो अद्धी सुनाई, स्टोरी पूरी कर पूरी स्टोरी इदा भी वो तो चलो भोज खत्म हो गया, बेचारे मर गए। हम राजा सीगा, उन्हें तो फिर भी ब्रह्म भोज देना सीगा। अगले साल फिर उन्हें भोज रखा, फिर ब्राह्मण बुलाए गए। अच्छा, नवे नवे जगह तो ब्राह्मण देवता होते सी, ब्राह्मणों खाने का बहुत शौक होता। फिर आए बेचारे। अच्छा भाई, कोई ब्राह्मण हो तो बुरा नहीं मनना है, अच्छा शौक है, अच्छा शौक। तो बुलाए गए ब्राह्मण, इकट्ठे होए ते हुण उन्हां नूं पहली बारी राजा के महल च जाना सीगा, रस्ता नहीं सी पता। तो उन्होंने किसी बजुर्ग लेडी उतों लंघी जाती सी, उन्हें पूछा कि माता ये राजा ने ब्रह्म भोज रखा भी कित्थे है महल? वो कहनी भी अपना पंडित जी इधर नहीं चले जाओ, उत्थे जाके इदा इदा पहुंच। वो जान लग गया, पर एक गल सुनो, राजा ना पिछली बारी उन्हें किया सी, ब्राह्मणों को जहर दे के मारता सी। उस वेले चित्रगुप्त कहंदा भी इहदे खाते च पा, ये लेडी दे खाते च पा, भी ना इन्हें लेना ना देना। इदा ही असी की करते हैं। पहला साडा लॉ की आ, नेवर टॉक नेगेटिव टुवर्ड्स डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। ये पहला लॉ है। कभी भी तुसी नेगेटिव गल नहीं करनी। ओ यार प्रोडक्ट महंगे आ, जो आदत होंगी एवं कह, पता है नहीं अच्छी की आ, हैबिट है। मेरा प्रोडक्ट महंगा, लीवर 450 रुपए का, उतो 100 रुपए का मिल जाता। पता है नहीं ਉਹਦੇ कंटेंट की है, ਇਹਦੇ कंटेंट की है, ਉਹਦੀ कंपोजिशन की है, ਇਹਦੀ कंपोजिशन की है, नहीं ਉਹਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਤੇ? ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਬੋਦਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਆਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ जस्ट बाय सेइंग लीवर महंगा है। हुण दूसरा बंदा की ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ हो सकता। तुसी प्रोडक्ट दिता हो, मौसम इतना चेंज होता, बॉडी इज अंडरगोइंग ए चेंज, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बॉडी कंपोजिशन, हाउ द थिंग्स वर्क, क्यों कह रहे हो सकता बाकी 50 जन संजीवनी का रिजल्ट आया हो, स्टोन कट का रिजल्ट आया हो, लिवर का रिजल्ट आया हो, तो नहीं आया। हो सकता, पॉसिबिलिटी है। 50 जन का रिजल्ट आया हो, 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 50 जन का रिजल्
Why are you so judgmental about the products? Any negative? यार मैं प्लान दिखाना कोई स्पॉन्सर ही नहीं होता, हीलिंग एंड में जुड़े ही नहीं मेरे। वाई प्लान दिखाना सीखो ना, अपने आप करेक्शन करने की लोड़ है। प्रोडक्ट्स करेक्शन की लोड़ नहीं, अपने आप करेक्शन की लोड़। और नैगेटिव कहना होना की है, जिन्होंने असं नैगेटिव गल कर रहे हैं, किसी नैगेटिव शेयरिंग कर रहे हैं, की होना उसका फायदा की है? इट्स ऑफ नो यूज। अच्छा कल उसे लेवल का रिजल्ट आ गया, नाउ व्हाट यू विल डू? जिन्होंने नैगेटिव किया हम की कहो यार हम आ गया रिजल्ट, व्हाट्स द फन? हो सकता हफ्ते बाद रिजल्ट आना हो सकता 15 दिन बाद आना हो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म किदा दा है, इट्स गोइंग अंडरगोइंग अ चेंज, इट टेक्स सम टाइम टू वर्क इन द बॉडी, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन होने में टाइम लगता, हैवी मेटल्स निकलने में टाइम लगता, है ना। सो सिस्टम दे विच काम करन नूं प्रोडक्ट्स नूं समय लगता, किसी नूं जल्दी आ जाता, किसी नूं लेट आता, किसी नूं बहुत लेट आता। सो वो शेयरिंग जिहदा कोई अर्थ ना हो वो नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रॉय करती साडे बिजनेस। जे असी एक्साइटेड है, जे असी कॉन्फिडेंट है, साडी डाउनलाइन भी एक्साइटेड है, कॉन्फिडेंट है। फैमिली दे विच जे प्यो ते कर्जा आया कि प्यो बच्चों नाल शेयर करी जाना, हम तो मर गए या लुट गए, हुण कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद हो गए, तो बच्चे की करनगे? वो कभी भी नहीं उठ सकते, नेवर। जे वो कभी कोई चक्कर ही नहीं, क्राइसिस है, तेरा प्यो की आया, वो फट्टे चक देंगे। ये प्यो एक्साइटेड है तो बच्चे भी एक्साइटेड, फैमिली यूनाइट रहती है, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो नैगेटिव बोलने नाल की होना? कुछ नहीं होना। सो हमेशा चढ़ती कला वाली गल करनी चाहिए, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਇਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਮਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। डाउनलाइन और हमेशा पॉजिटिव गल, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी नैगेटिव जबान से आना नहीं चाहिए। ये पहला लॉ है। जिहड़ा बंदा इस गल का ध्यान रखता उसका बिजनेस 100% होएगा, ते जिहड़ा बंदा इस गल इग्नोर करो, चल कोई नहीं, चल तो पता तो मेरा भरा ही हाँ, गल नहीं कोई थी, अपने कट्ठे ही है ना, तेन सारा कुछ ही पता है ना। कोई मैं इन्ने बंदे प्लान दिखाया, कोई प्लान दिखाने मेरी टीम तैयार ही नहीं हुआ, हाले मैं कला ही दिखाई है ना, अपनी डाउनलाइन नहीं शेयर करी है ना। लीडरशिप क्वालिटीज है नहीं यार अपने बंदे सारे, हाले बंदे लीडर नहीं बने, प्लान नहीं दिखाते मेरे लिए। मैं बड़ी कोशिश करता पर पता नहीं क्यों नहीं प्लान दिखाते, यही गल करी डाउनलाइन वाली करी जाती, उसका की लाभ होना नहीं, कोई लाभ? विल इट सर्व द पर्पस? Always say I am very excited about the business, मेरी ग्रुप सारे फायर्ड अप ने, फटाफट तैयार हो रहे प्लान दिखाने लगे, रिटेलर्स जबरदस्त ने, प्लानर्स जबरदस्त ने, विजनरी बहुत, ड्रीमर्स बड़े तगड़े हैं मेरे बिजनेस, फट्टी चक्की जाते हैं। एक साल 2 साल तू ये पता लगा बिजनेस करना कितना, एक करने वाली चीज है यार, फट्टे चकते हैं आप। ऑलवेज दिस, नेवर यार मैंने तो 2 साल हो गए, प्लान दिखाने वाले बंदे ही नहीं टकरे, लीडर नहीं बने यार, डाउनलाइन शेयर करो। दिस इज ऑल नेगेटिव। गल वो करनी है जिहदे नाल वो एक्साइटेड होवे, ओदी स्पीड एक्सेलरेट होवे, ना कि ब्रेकां लगन। ठीक है जी। पेशेंट को दवाई दी थी यार, कोई फर्क ही नहीं पिया। पहली गल तो दवाई है नहीं, दूसरी गल तो डॉक्टर है नहीं। डोंट से दिस, यू आर हीलर, यू आर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विच यू हैव गॉट फ्रॉम हीलिंग हैंड्स विद अदर्स एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज हेल्पिंग देम। यू आर नॉट डॉक्टर्स, डोंट क्लेम दिस, इसका नुकसान होना। ठीक है जी, ये पहला लॉ है, जिन्ना ध्यान रखांगे उन्ना ईजी। एक कहानी हो सुनाइए, एक कहानी हो सुना।
दूजी कहानी ये है जी, तुसी सारिਆਂ ने कौरव पांडवां वाली गल सुनी होनी है। कौरव पांडवां बारे जानते हो? पता नहीं सीगे कि नहीं सीगे, मैनूं नहीं पता, उस डिबेट च नहीं आपां जाना, पर कहंदे आ कौरव भी सीगे ते पांडव भी सीगे। मैं उन्हां दी गल सुना है महाभारत च, मैनूं नहीं पता महाभारत होया कि नहीं होया, आपां उस डिबेट च जाना ही नहीं। वो कहंदे कौरव पांडव ओहदा लग्या होया सी, की हुंदा दरबार लग्या होया सीगा, एंड ਜਿਹੜੇ सैनिक सीगे ना, एक 3-4 बंदियां नूं फड़ के लिया, 4 बंदियां उन्होंने चोरी की। चोरी के दौरान सट लगना, जिहदे घरे चोरी की सी, वो बंदा भी मर गया। वो फड़ के लियाते गए कलप्रिट दरबार दे विच, उन्होंने सजा देनी सीगी, ते उत्थे युधिष्ठिर भी सीगा और दुर्योधन भी सीगा, वो युवराज सीगे। तो उन्होंने जिहड़ा धृतराष्ट्र सीगा उन्हां दा, जिहड़ा दुर्योधन दा फादर, वो राजा वो सीगा उदों, तो कहते चलो इन्हां दा टेस्ट भी हो जूगा, इसे बहाने तो आपां इन्हां नूं सजा भी मिल जूगी। पुछदे इन्हां नूं कि की सजा देनी चाहिए 4 बंदियां नूं जिन्हां ने चोरी की ते उस दौरान बंदा भी मर गया। कहना पहला दुर्योधन नूं पुछ लैंदे आ, ये छोटा आ, इहनूं राइट है, पहला छोटे का राइट हुंदा पहला। कहना हाँ भी इन्हां नूं की सजा देनी चाहिए है? फांसी दे दो इन्होंने, इन्होंने हस्तिनापुर दे विच चोरी की, बंदा मर गया, होर इन्होंने की सजा देनी चाहिए? फांसी दो ना। गल तो ठीक है भी बंदा भी मर गया, फांसी मिलनी चाहिए है। वो कहता चल युधिष्ठिर का मत भी ले लेंगे। वो कहना युधिष्ठिर तू की कहना? कहता जी पहला तुम दसो 4 बंदे है कौन? वो कहना एक हैगा शूद्र, एक हैगा वैश्य, एक है क्षत्रिय, एक है ब्राह्मण। इहदा रिलीजन में कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट इंस्टेंस शेयर कर रहा। एक है शूद्र, एक है वैश्य, एक है क्षत्रिय, एक है ब्राह्मण। वो कहना फिर इदा करो जी, जिहड़ा शूद्र आ वो तो 2-3 कोड़े मार के उन्हें छड़ दो। कहता ये क्यों? वो कहना इसलिए जी ये बेचारा गरीब आदमी आ, पढ़िया लिखा है नहीं, भुख दे करके चोरी कर गया सी, इन्होंने मुश्किल चोरी के दौरान बाई चांस इन्हों तो किसी बंदे की हत्या हो गई। किहने हत्या की आपां नूं नहीं पता, पर इहदा चोरी का कारण भुख सी, इहदी इस तों बाद सजा नहीं बनी। ते कहंदा जिहड़ा दूसरा है वैश्य, इहनूं की सजा दी? कहंदा इहनूं 2 साल की कठोर कारावास की सजा मिलो, लाल 2-3 कोड़े मारो। कहना भी इन्हें भी तो वही कुछ किया। वो कहना नहीं, ये रोटी कमा के चंगी तरह खा सकते, इज अ बिजनेसमैन है ना, इहदा समाज दे विच कोई स्थान हैगा, ये पढ़िया लिखा हैगा, ये काम करके किरत करके रोटी कमा के खा सकता, इन्हें चोरी करने की लोड़ नहीं सी। फिर भी इन्हें चोरी की तो उस दौरान लालच वश ने चोरी की तो उस दौरान एक बंदा मर गया, इन 2 साल की सजा घट्टो घट बनती है। बंदा इन्होंने नहीं मारिया, वो तो मर गया। कहना अच्छा, कहना तीजा क्षत्रिय है, इन्हें दूजिया की रक्षा करनी है। ये साडी क्षत्रिय की कम्यूनिटी है, ये दूसरे की रक्षा करते, ये भक्षण नहीं करते। जेड़े बंदे ने रक्षा करनी सी, उस बंदे ने उहदे घरे चोरी की तो उस दौरान उस बंदे की मौत होगी। इहनूं तुसीं आजीवन कारावास की सजा ठीक है। ब्राह्मण कहते फांसी ला दो। क्यों? कहता ये सारी दुनिया नूं ज्ञान पाप पुण्य का दिंदा भी की ठीक है की गलत है, की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, आप इदां दे काम करदा तो फांसी तो घट की सजा बनदी नहीं। इदा ही ये बिजनेस है। तुसीं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करते हो, गलती करते हो तो सजा घट है। ये मत समझो कि तो 2 लग्गां दा बिजनेस है, इधर 400 बंदा हो गया, इधर 500 बंदा हो गया, हुण मैं जो मर्जी कर लवां ते मैं तां फ्री हाँ, मैनूं कुछ नहीं होना। मेरा एडा वड्डा ग्रुप है, मेरा 1000 बंदे का ग्रुप है, मेरा 10,000 बंदे का ग्रुप है, मेरा 50,000 बंदे का ग्रुप है, मेरा 5 लाख का भी होना किसी ते सजा उस प्रपोर्शन च मिलनी है जिस प्रपोर्शन च शूद्र मीनस छोटा बिजनेस, वैश्य मीनस उस तो वड्डा बिजनेस, क्षत्रिय मीनस उस तो वड्डा बिजनेस, ब्राह्मण मीनस सारा बिजनेस तुहाडी डाउन च ही है।
गलती करोगे तो सजा उस हिसाब से ओनी ओनी मिलनी। हिसाब ला जो बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो जो छुट्टिया तो कितना नुकसान होना। कायदा रूल, नेवर mess with anybody's money, ego or spouse। कदी किसी दे पैसे दे नाल, कदी किसी दे अहम दे नाल, कदी किसी फीमेल या मेल दे नाल मैच नहीं करनी, गल करनी। ये मत सोचो कि असी अनटचेबल हो गए। ये पता भी नहीं लगना कितने बिजनेस गया। ये ताश दे पत्ते या लोग तुहानू देख रहे हैं भी ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਪਨ ਭਾਰਗਵ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ उदा ही सजा मिलनी है। पैसे ले ले डाउनलाइन दे खा गए, चल कुलूम नाल घूम आने प्रोडक्ट बाद च ले जाएंगे। मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मेरी तो सारी डाउनलाइन है। मैनू के परजा मेरी है ना, मैनू कहना नेवर मैस। कभी किसी अहम दे नाल तेनू काम का प्लान दिखावा मैं तेनू, तू बिजनेस करेगा वो जा यार पहला वधिया कपड़े पा के आ, तेरी कमीज पाटी पई है। डोंट मैस विद एनीबॉडी ईगो। की पता ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਮੰਦਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੇਫ ਹੈ। एनवायरनमेंट ये रेपुटेशन ਆਪਾਂ नहीं बनाते तो सजा उस हिसाब से किसी भी लेवल पे जदों कुछ गलतियां होणगियां बिजनेस कोलैप्स कर देगा, पता भी नहीं लगना कितने हैगी। ते जे असीं करैक्टर बिल्ड कर लिया फिर इसकी कोई लिमिट नहीं किड्डा वड्डा हो, नो लिमिट। तुसीं याद करोगे कि असीं कदों शुरू कीता सी, साडा 200 रुपए का चैक आया सी। ਅੱਜ पता ही नहीं सानू किन्ने ਲੱਖਾਂ रुपए आ रहे, करोड़ां रुपए आ रहे, पता नहीं किन्ने सिल्वर रोज ब्रेक हो रहे, पता नहीं किन्ने स्टार्स, किन्ने एमरल्ड्स और डायमंड्स साडे बिजनेस चोरे, सानू पता ही नहीं। असी हवाई बीच ते बैठे हां, पता ही नहीं। लेकिन बिल्ड योर कैरेक्टर फर्स्ट। एक कैरेक्टर है जेड़ा ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, जुड़नगे और रहेंगे, और जिहदे करके लोग बिजनेस करने। नहीं तो लोगों को होर ऑप्शंस होणगियां, मैनूं नहीं पता, पर ये ऑप्शन तां ही लोग अडॉप्ट करनगे जे साडा कोई करैक्टर। लालच वश कुछ ना करो। लालच तो शिव दा भाव यह है भी हर एक बंदा नूं इच्छा है कुछ करन दी। लालच मीनस डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। भी बीमार है नहीं तो कोई लेना ही लेना, मैं जो मर्जी दे दूं, डोंट डू दिस। पैसे मनी विल फॉलो यू। तुसी अपना करैक्टर वधिया। जो नहीं पता टेल देम, आई विल आस्क एंड देन गेट बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट से मैं डॉक्टर है नहीं है तो ना कहो, से आई एम अ हीलर। मैनू नवी इन्फॉर्मेशन है, मैनू नहीं पता, मैं पूछ के दसूंगा तेरे केस मैंने पता नहीं की देना है, आई विल गेट बैक। वो तेरी रिस्पेक्ट करूंगा बंदा। तुझे कहते मैं सारा कुछ ही आना, गलत फलत जो मर्जी दे चलो जाओ, रिजल्ट आई जाना, चलती बुरा नहीं होगा, तब फायदा हो जाएगा, दे दे मेरे को पैसे बनने चाहिए। डोंट डू। शॉर्ट टर्म गेन्स वास्ते बिजनेस नहीं करना। शॉर्ट टर्म गेन्स वो करता जो बंदा मजदूरी करता, उन्हें शाम को दिहाड़ी चाहिए, वो शॉर्ट टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म की सोच है, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है। जो बंदा नौकरी करता उन्हें महीने बाद तनख्वाह चाहिए, वो उन्नी प्लानिंग है। तो मैं महीना काम कर लिया, उन्हें तनख्वाह मिल जानी चाहिए, उन्हें उन्ने पैसे मिल जाए। ਜਿਹੜਾ बिजनेस करता 2-3 साल का प्लान करता, उन्होंने उस हिसाब से पैसे मिल जाए। ਜਿਹੜੇ रिलायंस वर्गे बंदे ने, मुकेश अंबानी या होर लोग, विप्रो, अजीम प्रेम जी है ना, टाटा बिरला, उन्होंने 10-20 साल की प्लानिंग होती है, वो उस हिसाब से पैसे कमाते। सो साडी प्लानिंग कितनी दूर दी है,
एक दिन की है, एक महीने की है, 2-3 साल की, कि लाइफ लॉन्ग कैरियर प्लान किया होया उस हिसाब से पैसे कमाने इस बिजनेस। सो मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोग कि लॉन्ग टर्म प्लान करो। लॉन्ग टर्म प्लान करके बहुत उच्चे जा सकते हैं, ठीक है, पैसे भी कमा सकते हैं, लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा लॉ, इतने भी कहानी तो बनती है ना, नहीं तो नाइंसाफी है ना। कहानी इदा, एक मेरे वर्गा बंदा अपने दोस्त का हाल चाल पूछन हॉस्पिटल से गया तो सारा टुटिया भज्या पिया सीगा। वो कहना कि एक्सीडेंट हो गया, तेरा नक भी टूट गया, तेरा मुंह भी टूट गया, तेरी गर्दन भी टूटी है, तेरे रिब्स भी टूटी है, लत्तां भी टूटी है, सारा कुछ टूटिया पे किस वजह सी? कहना नहीं यार, बाल्टी नाल हो गया। बाल्टी नाल हो गया, बाल्टी ने इन्ना कुछ कितना टुट सकता? कहना भैया सुना दूंगा। कहना गल इदा घरे हो रही थी कंस्ट्रक्शन, तो मजदूर चले गए, कुछ इट्टा उत्ते छड्ड गए। मैं कहा चल इट्टा मैं थले ला दूंगा तो उत्ते कोई न्याणा बाहर सर्टिफिकेट मार लूंगा। कहता पुली लगी हुई सीगी, तो मैं क्या चल बाल्टी भी आ पुली भी आ, इट्टा मैं बड़ा सारा बाल्टा से उस पाइया मैं थले ला देना ना पुली के नाल, उदा एक एक चक किद्दां लियाऊंगा। कहना बाल्टा भर लिया, मैं थले आया, थले रस्सी बनी हुई सीगी, कहना रस्सी खोली, हम उन्हें थले आना सी बाल्टे ने। कहना बाल्टा बहुत भारा सी यार, तो मैं सीगा हल्का, मैं उत्ते नहीं चले गया, बाल्टा थले नूं आ रहा सी। राज कहना मिल पिया सी, मेरी रेप जरूर सारियां टुट गई ना जरूर, बहुत जरूरी। अच्छा कहना चलो जो मिलाप होना सी हो गया, फिर बाल्टा थले जा रहा, कहना मैं उत्ते जा रहा, उत्ते कहना मेरे उंगला सी पुलिस फस गई, उंगला टुट गई यार। अच्छा कहना बाकी की जो उंगला टुट गई तो जो बाल्टा से थले वजया उन्नी देर जो बाल्टा थले तला निकल गया, हूँ तला निकल गया तो इतना थले रह गया, बाल्टी हल्की होगी तो मैं भारा हो गया। उल्टा जा रहा, बाल्टी उत्ते जा रही, मैं थले आ रही, रात फिर मिल पे कहना मेरी। अच्छा कहना फिर बाकी की हम बाल्टी उत्ते चलेगी तो मैं थले वजह ठा करना, इन्नी जोर की वजह कहना पिठ टुट गई यार, बहुत चीका निकल गई। जब मेरी ये चीका निकल गया तो रस्सी छुट गई, रस्सी छुट गई तो बाल्टी थले आ रही है, कहना मेरे मुंह पे बजी, मुंह बाहर गया। तीसरा जो अपना लॉ है, नेवर डू एनीथिंग for the first time without checking upline। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ पहली बारी करन लगी हो तो हमेशा अपलाइन की सलाह लो। जे वो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंदा जिन्होंने रोज का काम सी तो उन्होंने इदा नहीं सी होना। इदा ही जो असी बिजनेस शुरू करते हैं असी सलाह नहीं लेंगे, लेकिन हमको सारा कुछ आता है। हमने तो 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में लगाए हैं, मैं तो पट्टे दूंगा चक, महीने 2 महीने बाद कुछ होंदा नहीं, चलो सामने वाला कहना की बेकार या काम नहीं करना या हो कुछ कर रहा जिस नौकरी करना, ये गल तो ठीक है। उदों साडा उदा ही कभी साडा रिब्स टुट रही हैं, कभी साडा इमोशनली असी हर्ट होंगे हैं, ठीक है, इमोशनली हर्ट होंगे, ब्रेक डाउन होंगे हैं, निराश होंगे हैं, है ना। मन $1 बिलियन आइडिया था भी मैं अखबार च ऐड दे देवां, हो सकता उसमें कोई लाभ ना होना हो, पैसे ही जाने हो, साडा ते अपलाइन ने पहले ही कीता हो। एक बिजनेस दे विच 50, 60, 70 साल की हिस्टरी है, तो वो बहुत सारे काम हो चुके हैं। इहदे च जिहड़ा तुहाडा अज नवां आइडिया है, हो सकता वो इन 70 सालों के विच बहुत बार दोहराया गया होवे और उसके नैगेटिव रिजल्ट आए होण। ते जे तुसीं अपलाइन वाले सिस्टम दे विच गल शेयर करोगे तो हो सकता तुहाडा समय और पैसा बच जाए, एनर्जी बच जाए, तुहाडे कोल नैगेटिव एक्सपीरियंसिस ना आउण जिहड़े अदरवाइज आउणगे। इट्स लाइक हिल टॉप के उत्ते कोई बैठा आ, आपां गड्डी च जा रहे हैं, वो सारा कुछ देख रहा भी गड्डी अगे कोई ट्रक आ रहा, कोई स्कूटर आ रहा, कोई खड्डा आया, कोई सड़क नहीं ठीक बनी, कोई सानू गाइड कर सकता भी इतों ध्यान नाल, इतों ब्रेक, इतों हौली, इतों सड़क नहीं ठीक हैगी, है ना, इतने ट्रैफिक जा रहा है। ही कैन गाइड अस। अपलाइन एंड सिस्टम आर लाइक दिस कि दे आर सिटिंग एट द टॉप। साडे नालों पहला बिजनेस चाहे आ, उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की जी अज साडे नवे एक्सपीरियंसिस होने हैं, तो वो बहुत सारा समय, एनर्जी, पैसा
बच सकता और असी इमोशनली हर्ट होने तो बच सकते हैं या असी इमोशनली हर्ट हुए हैं तो सानू सपोर्ट कर सकते, सानू गाइड कर सकते, इदा नहीं इदा कर ला, इदा नहीं इदा कर ला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग एक काम भी नहीं करते, दे डोंट काउंसल विद देयर अपलाइज। इतने भी नुकसान होगा। सो ये तीन चीज़ां ने जिन्हां दा ध्यान रखना है भी ये नहीं करनी। Never talk negative towards downline and crossline, never mess with anyone's money or spouse, and never do anything for the first time without checking your outcome. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਡਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।